As we are continuing second chapter of our Indian geography, physiographic division of India, we have completed the Great Himalaya, the Northern Plains, the Great Indian Desert or the Indian Desert, the coastal areas or the coastal plains. These four topics have been completed. Now we have to learn two more topics which is left in this chapter, that is the island, and the last would be the peninsular plateau. पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है वो हमें पढ़ना है, और आइलैंड्स के बारे में पढ़ना है कि भारत में आइलैंड कहाँ पे है, इनके बारे में कुछ पढ़ना है, कितने तरीके के आइलैंड्स होते हैं, आइलैंड क्या होता है और इनके कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. So as I told you earlier that after coastal plains we will be studying peninsular plateau, but today we are going to end with the islands and tomorrow will be the lecture based on peninsular plateau. Okay? तो आज हम आइलैंड शुरू कर रहे हैं और आज आइलैंड छोटा सा टॉपिक है, इसे ख़त्म भी कर लेंगे क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू एटलीस्ट आपको 2 days लेगा. एटलीस्ट 2 days विल बी there. 2 days lecture will be there of peninsular plateau. Okay, so yes, 2 days will be the lecture of peninsular plateau. So today will begin the island. Yesterday we have studied about coastal plains, so in 2 minutes I would like to revise all the important parts of the coastal plains. India's coastal plains are divided into 2 segments, that is western coast and eastern coast. Okay, the total land mass or the total land boundary of India is 22,700 something kilometer. Something, it means approximately 22,700 kilometer is the total land boundary of India, out of which 15,200 is considered as the land boundaries of northern plains, Himalayas, etc., and 7,516.6, yes, this is the exact data, 7,516.6 or 15.6 is the kilometer of coastal plains which is located in India. So there are 2 coastal plains, one is western coast and second is eastern coast. Western coast is like a structure of sandwiched between Western Ghat and Arabian Sea, as I told you earlier with the map also, whereas Eastern Ghat is again a structure of sandwiched, lies between Arabian Sea and Eastern Ghat is again a sandwiched structure, lies between Bay of Bengal and Eastern Ghat, and Western Ghat is Arabian Sea and वेस्टर्न कोस्ट अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स, ये मैंने कल आपको बताया था. देन देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेन कोस्ट विच इज सिचुएटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट आर कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट. कोंकण कोस्ट इज नियर महाराष्ट्र, कन्नड़ कोस्ट इज नियर कर्नाटक and Malabar coast is near Kerala. Whereas if we talk about the eastern coast, so there are 2 famous coasts, Coromandel coast and Northern Sarkar. Okay, then we had studied that several rivers, Krishna, Kaveri, Mahanadi, Godavari, these all rivers flow from western side to eastern side. Okay, लास्ट में हमने पढ़ा था चिलिका लेक के बारे में, जो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आइलैंड. व्हाट इज आइलैंड? अ लैंड बाउंड्री और अ लैंड मास which is surrounded by all the sides of water is called island. Island किसको बोलते हैं? ऐसा लैंड मास जो चारों ओर से क्या है, पानी से घिरा हुआ हो, वाटर से सराउंडेड हो, तो ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं. यू कैन सी द पिक्चर हियर, अ लैंड मास इज देयर and it is surrounded by all sides of water. You can see, I am zooming it. Yes, this is the land mass which is surrounded by all sides of water. So this is called an island. Okay, देख रहे हैं चारों ओर क्या है, पानी लगा हुआ है और बीच में एक लैंड मास है. भारत में इन आइलैंड्स को 2 ग्रुप पे बांटा गया है.
One is in the western group of island, and second is eastern group of island. Western group of island consider about the Lakshadweep Islands, and eastern group of islands are again classified into two groups, that is Andaman group of island and Nicobar group of island. तो भारत के दक्षिण पश्चिम और भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में दो तरह की आइलैंड की आकृतियां मौजूद हैं। इन्हें दो ग्रुप्स में बांटा गया है, एक जिसे हम लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड कहेंगे और दूसरा जिसे हम अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप आइलैंड के कंपैरिजन में या लक्षद्वीप द्वीप समूह के कंपैरिजन में की तुलना में ज़्यादा भव्य है, ज़्यादा बड़े हैं। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड भारत के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड में एग्जिस्ट है और निकोबार आइलैंड भारत के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अंडमान से और साउदर्न डायरेक्शन में लोकेटेड है। और ऐसा माना गया है कि जो कुछ आइलैंड है निकोबार ग्रुप समूह के, वो इवन 6 डिग्री लैटिट्यूड से नीचे भी आते हैं। 6 डिग्री लैटिट्यूड ही मैं क्यों तुम्हें बार बार बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि 6 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब क्या है कि वो लैटिट्यूड जहाँ से इंडिया का साउदर्न पॉइंट स्टार्ट होता है। आप एकदम इक्वेटर के पास से आएंगे तो आपको एक कंट्री मिलेगी श्रीलंका, इक्वेटर के और ऊपर। इक्वेटर पे भी हालांकि कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी इक्वेटर पे। तो श्रीलंका है उसके ऊपर, एशिया कॉन्टिनेंट। उस श्रीलंका से ऊपर क्या है, भारत है। तो जहाँ पे श्रीलंका ख़त्म होता है उसके फिर थोड़े दूर से क्या है, भारत स्टार्ट होता है 6 डिग्री लैटिट्यूड से। उस 6 डिग्री लैटिट्यूड से भी थोड़ा सा नीचे कहीं कहीं निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स गए हुए हैं। चलिए, तो ये हमने जाना। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड की अगर बात करें तो दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। अर्लियर देयर वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमेंडीव। ये जो आइलैंड है इन्हें पहले क्या कहा जाता था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमेंडीव। आज से 3 से 4 साल पहले एक बार केबीसी के प्रोग्राम में ये क्वेश्चन हूबहू अमिताभ जी ने पूछा भी था किसी कंटेस्टेंट से कि विच ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ इंडिया वाज पॉपुलरली नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमेंडीव। ये हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है इसको पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमेंडीव बोला गया था। 3 नाम थे इसके। याद करने का तरीका हो सकता है मेरे समझ से कि एल से लक्षद्वीप है, एल से लक्षद्वीप था, ठीक है। इसके बाद 1973 में 1973 की बात कर रहा है कि इन 1973 इट वाज नेम्ड एज लक्षद्वीप। यानी 1973 में फिर इसे क्या बोला गया, लक्षद्वीप बोला गया। यानी 1973 में इस आइलैंड का नाम पड़ा लक्षद्वीप। इसके पहले इसका नाम था लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमेंडीव। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये छोटे एरिया में है, मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड ज़्यादा बड़े समूह में है। तो ये 32 स्क्वायर किलोमीटर में है। अब 32 स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है, 32 किलोमीटर तो समझ में आ रही है चीज़ें कि यहाँ 32 किलोमीटर का डिस्टेंस कह सकते हैं कि यहाँ से बलिया हमारे यहाँ से रसना से 33 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वही 32, 33, 34 सिमिलर मानते हैं कि वो डिस्टेंस है। स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या है कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ चारों डायरेक्शन को मिला के स्क्वायर शेप बनता है। आपको पता है, मैथ्स में आपने बनाया है। तो उस स्क्वायर शेप में 32 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। इसका मतलब है कि ये नॉर्थ साइड में, साउथ साइड में, ईस्ट साइड में, वेस्ट साइड में चारों डायरेक्शन को लेते हुए 32 किलोमीटर का मेजरमेंट किया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड लक्षद्वीप आइलैंड। कावरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। जी, कावरत्ती आइलैंड वहाँ पे है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, मतलब मेन कह सकते हैं कि एक तरह से आइलैंड है किसका, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का। समझ रहे हैं बात। जैसे आपके स्कूल में सनफ्लावर में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है प्रिंसिपल सर का ऑफिस, ठीक है, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें संचालित होती हैं, वहीं से सारे आदेश आते हैं, वहीं से प्रिंसिपल सर आप लोग को देखते हैं कि पढ़ाई अच्छी से हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई कमी रहती है तो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं।
तो कावरती आइलैंड क्या है, एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप आइलैंड का। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। यस, इंपॉर्टेंट लाइन, इट हैज़ अ ग्रेटर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब समझते हैं, डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता। डिफरेंट तरीके के स्पीसीज पाए जाते हैं, चाहे फ्लोरा के चाहे फाउना के। ये आपने साइंस में पढ़ाई होगा, फ्लोरा किंगडम एंड फाउना किंगडम, इट मीन्स द kingdom of plants and animals. The Piti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. Yes, again a famous island of Lakshadweep group of island is the Piti Island. एक Piti Island वहाँ छोटा सा island है, ये bird sanctuary है, यहाँ पे bird sanctuary located है, इसलिए ये famous है। इसके साथ साथ it is uninhabited. अनइनहेबिटेड का मतलब ये है वहाँ पे कि वहाँ पे आप देखेंगे तो जनरली कोई निवास करता नहीं है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो व्हाट आई वाज सेइंग, पिटी आइलैंड छोटा सा आइलैंड है, अनइनहेबिटेड है, वहाँ मानव नहीं निवास करते हैं, और वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है। इसके अलावा कावरती आइलैंड, इट इज़ द मेन हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। सारा का सारा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 1973 में इसका नाम पड़ा लक्षद्वीप। इसके पहले इसे जाना जाता था एमेंडीव, मिनिकॉय और लैकाडीव से। दो तरीके के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, एक लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड साउथ वेस्ट में, एक अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड दैट इज़ लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न साइड। तो ये रही स्टोरी। खैर वीडियो थोड़ा सा डिटेल्ड हो रहा है, इसलिए अंडमान एंड निकोबार को हम कल ही स्टार्ट भी करेंगे और ख़त्म भी करेंगे, और कल ही पेनिनसुला प्लेट्यू भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, टिल देन रिवाइज। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स बेटा रिगार्डिंग द लेक्चर्स विच आई एम टेकिंग, so please do comment, please do comment and ask your doubts regarding your concepts. Thank you very much.